محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ ایک طویل حدیث ہے. اس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے میں اجر ہے. انہوں نے کہا، میں نے اپنی شہوت پوری کی، اس میں اجر کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹا ہو، پھر وہ بالغ ہو جائے اور تم کو اس سے خیر کی امید بھی ہو، اتنے میں وہ فوت ہو جائے، تو کیا تم ثواب کی نیت کے ساتھ صبر کرو گے؟ اس نے کہا، جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اس کو پیدا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کو ہدایت دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کو رزق دیا تھا؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح جماع کے ذریعے حلال کو تلاش کر اور حرام سے اجتناب کر. بس اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو زندہ رکھے گا اور چاہا تو اس کو فوت کر دے گا، اور اس میں تیرے لیے. آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ہر پیر کی طرح اس پیر کو بھی پرجوانی کا اہتمام. منڈل سطح پر حل ہونے والے مسائل کو عوامی سماعت تک پہنچنے سے قبل ہی حل کرنے عہدے داران کو ہدایت. حضرت سید شاہ کمال بیابانی کنٹیشور درگاہ کے جعلی دستاویزات بناتے ہوئے رجسٹری کی گئی. قبضے کو برخاست اور رجسٹری منسوخ کرنے حافظ لائق خان کی درگاہ سجادہ نشین کے ہمراہ کلکٹر سے ملاقات. چہل قدمی، ورزش، یوگا صحت کے لیے مفید. روزانہ چہل قدمی کرتے ہوئے بہتر صحت بنائیں. درپلی CI. اب خبریں تفصیل سے. پرجوانی پروگرام میں شکایت کنندگان نے پیش کی ایڈیشنل کلکٹر و دیگر عہدیداران کو درخواستیں. منڈل سطح پر حل ہونے والے مسائل کو عوامی سماعت تک پہنچنے سے قبل حل کرنے ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار نے منڈل عہدیداران کو دی ہدایت. شہر کے بائی پاس روڈ پر واقع انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کانفرنس ہال میں پرجوانی پروگرام منعقد کیا گیا. شکایت کنندگان نے ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار اور محکمہ PD راجندر کو اپنی درخواستیں پیش کی. شکایت کنندگان کی بڑی تعداد کی وجہ سے عوامی سماعت شکایت سے بھری پڑی تھی. شکایت موصول ہونے والے عہدیداروں نے متعلقہ عہدیداروں کو فون کر کے مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت کی. ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار نے منڈل عہدیداروں کو ہدایت دی کہ منڈل سطح پر حل ہونے والے مسائل کو عوامی سماعت تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں. انہوں نے مشورہ دیا کہ شکایت کنندگان کو منڈلوں میں واقع دفاتر کے چکر نہ لگائے جائے. اس عوامی سماعت کے پروگرام میں اعلیٰ حکام کے ساتھ متعلقہ محکمے کے افسران اور عملے نے شرکت کی. فون ٹیپنگ معاملہ جو ریاست بھر میں موضوع بحث بن گیا. ایک رپورٹ. فون ٹیپنگ معاملہ جو ریاست بھر میں موضوع بحث بن چکا کاماریڈی میں بھی ہلچل مچا رہا. ایسا لگتا ہے کہ وکیل اور کانگریس کے سینئر لیڈر دیو راجو گوڑ کا فون بھی ٹیپ کیا گیا. اس تناظر میں SIT حکام نے انہیں فون کال کے ذریعے بیان کے لیے حیدرآباد میں ان کے دفتر آنے کو کہا. کانگریس کے سینئر لیڈر دیو راجو گوڑ کو پارٹی میں ترجیح حاصل ہے. گزشتہ اسمبلی انتخابات کے دوران CM ریونت ریڈی جنہوں نے کاماریڈی سے انتخاب لڑا تھا، ان کی زیادہ تر دیکھ بھال ان کے بھائی کونڈل ریڈی نے کی تھی. دیو راجو گوڑ کونڈل ریڈی کے ساتھ رہے اور پارٹی کی مہم اور مالیاتی امور کی نگرانی کی. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ان کا اپنا فون ٹیپ کیا ہوگا.
اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ان کا فون ٹیپ کیا ہوگا۔ دیو راجو گوڑ کے ساتھ ساتھ شبہ ہے کہ ضلع کے کئی لوگوں کے فون بھی ٹیپ کیے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ عہدیدار اور قائدین پریشان ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس کے گلے میں لپٹے گا۔ گزشتہ اسمبلی انتخابات میں سابق سی ایم KCR نے کاماریڈی حلقے سے BRS امیدوار کے طور پر اور موجودہ سی ایم ریونت ریڈی نے کانگریس سے مقابلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کاماریڈی الیکشن کا چہرہ پوری طرح بدل گیا۔ دونوں اہم قائدین نے کاماریڈی میں لڑائی کو بڑی عزائم کے ساتھ لیا۔ انہوں نے جیتنے کے مقصد سے میٹنگیں، کانفرنسیں اور روڈ شو کیا۔ اس کیس کی ابتدائی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ ایک ٹیپنگ ٹیم کو خصوصی طور پر کاماریڈی بھیجا گیا تھا۔ اپوزیشن پارٹی کے اہم رہنماؤں کی نقل و حرکت کی جاسوسی اور مالیاتی لانڈرنگ کے الزامات کو انتخابات کے دوران پیش آنے والے کئی واقعات کی تائید ملتی ہے۔ کانگریس کے اہم قائدین میں سے ایک G. سرینواس ریڈی کے کاروباری دفتر پر مارے گئے چھاپوں میں 58 لاکھ روپے ضبط کر لیے گئے۔ ان کے گھر کی بھی سرپرائز تلاشی لی گئی، جہاں سی ایم ریونت ریڈی کے بھائی کونڈل ریڈی دیون پلی علاقے میں رہتے ہیں۔ پولیس نے اس وقت کے میونسپل وائس چیئرپرسن کے گھر پر بھی چھاپا مارا اور معائنہ کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھاپے فون ٹیپنگ کے ذریعے تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ چھاپے فون ٹیپنگ کے ذریعے تفصیلات جاننے کے لیے کیے گئے تھے۔ کاماریڈی میں فون ٹیپنگ کی تحقیقات کرنے والے انٹیلیجنس ذرائع نے SIT کو رپورٹ پیش کی۔ کیس میں تازہ ترین پیش رفت کے ساتھ اب ایک ایک کر کے ٹیپنگ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ شہر میں اس بات کو لے کر بحث جاری کہ آیا SIT سے فون کالز موصول ہو رہی జరిగినటువంటి జనరల్ ఎలక్షన్లో భాగంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నేను క్రియాశీలకంగా ప్రచార బాధ్యతలు నిర్వహించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి గెలుపు కోసం నిర్విరామంగా విశ్వసనీయతోటి పనిచేయడం జరిగింది। ఈ భాగంలో సందర్భంగా గత వారం రోజుల క్రితము ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విషయమై జూబ్లీ హిల్స్ పోలీసు వాళ్ళు మీ ఫోన్ కూడా ట్యాప్ చేయడం జరిగింది। కాబట్టి మీ స్టేట్మెంట్ రికార్డు కోసం మీరు జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ రావాల్సిందిగా కోరడం జరిగింది। దానికి స్పందించి నేను వారం రోజుల వ్యవధి అడగడం జరిగింది। ఇక్కడ ఏం జరిగిందో అన్ని విషయాలు ఖచ్చితంగా నేను సిట్ బృందానికి తెలియజేస్తానని ఈ సందర్భంగా చెప్తాను। दरगाह हजरत सैयद शाह कमाल बयाबानी रहमतुल्लाह वाक़ई कंटेश्वर की अराजी जिसका सर्वे नंबर 285 और 294 के जाली दस्तावेज़ात तैयार करते हुए रजिस्ट्री की गई। वक्फ अराजी पर कब्जा और जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए रजिस्ट्री करने के खिलाफ नायब अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ लई खान ने दरगाह के सज्जादा नशीन मिर्ज़ा यूनुस बेग के हमरा ज़िला कलेक्टर से की मुलाकात। नुमाइंदगी हवाले करते हुए कब्ज़ेजात को बर्खास्त करने और रजिस्ट्री को मनसूख करने का मुतालबा किया। दरगाह हज़रत कमाल शाह बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह जो कंटेश्वर पर वाक़ है, वहाँ के सज्जादे नशीन जनाब मिर्ज़ा यूनुस बेग साहब के साथ हम उनके हमरा कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए हैं कि जो वक्फ बोर्ड की जगह है, इनामी जगह कंटेश्वर रोड पर, जिसका सर्वे नंबर 285 और 294 है, गलत सर्वे नंबर लगाकर एक रजिस्ट्री हुई है। फेक डॉक्यूमेंट, जाली दस्तावेज़ात तैयार हुए हैं। डॉक्यूमेंट का नंबर ये है कि 869/2025 यानी कि 27 जनवरी 2025 यानी आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले वो रजिस्ट्री हुई है और अंदर ही अंदर वो रजिस्ट्री बनाई गई है। ये फेक डॉक्यूमेंट है। हमने कलेक्टर साहब से मुतालबा किया कि ये वक्फ बोर्ड की जगह है, ये डॉक्यूमेंट नहीं बन सकते, किसी की ज़ाती जगह नहीं हो सकती। इस रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए हम कलेक्टर साहब से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की है और वो जो जगह है उसके अतराफ पूरी जॉइंट सर्वे कराने का हमने मुतालबा किया है कि वक्फ बोर्ड, रेवेन्यू और इसी तरह सर्वे डिपार्टमेंट तीनों का एडी सर्वे और रेवेन्यू और इसी तरह वक्फ बोर्ड का जॉइंट सर्वे कराने का हमने मुतालबा किया और जॉइंट सर्वे के बाद इस जगह की हिसारबंदी और उसकी बाउंड्रीज फिक्स हो। CP साई चैतन्या ने पुलिस को आवाम से जोड़ने के लिए मॉर्निंग वॉक प्रोग्राम का आगाज किया। दरपली CI ने सेहत के मसाइल पर बेदारी लाई। दरपली मंडल मुस्तफर में पुलिस कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक CIP विक्षपति ने तमाम पार्टियों के कायदीन और नौजवानों के साथ
पुलिस महकमे के ज़ेरे एहतमाम सुबह 6 बजे चहल कदमी की। उन्होंने गांधी चौक से मॉडल स्कूल, NTR कॉलोनी और मंडल मुस्तकर में तेलंगाना तली मुजस्मे तक पैदल सफर किया। इस मौके पर CI भिक्षपति ने कहा कि हर किसी को सुबह चहल कदमी की आदत डालनी चाहिए ताकि वो सेहतमंद और खुशबू खुरम रहे। उन्होंने कहा कि रोजाना योगा और वर्जिश से ज़हनी खुशी के साथ साथ सेहत भी बनती है। इस प्रोग्राम में दरपल्ली CI, दरपल्ली SI रामकृष्णा, सिरकुंडा SI राम, नौजवान और पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। నివారించుకోవాలి, దానికి సంబంధించి పబ్లిక్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మా సిపి గారి ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈరోజు దర్పల్లి గ్రామంలో మార్నింగ్ వాక్ నిర్వహించాము. దీనికి మండలంలోని యూత్, ఇతర ప్రజలందరూ కూడా వచ్చేసి విజయవంతం చేసినారు. అందరికీ మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము. सफेद राशन कार्ड के लिए कोई शराइत नहीं। निजामाबाद जिला सदर MBT मीर बशारत अली की नुमाइंदगी पर जिला कलेक्टर की वजाहत। मीर बशारत अली मजलिस बचाओ तहरीक निजामाबाद जिला सदर ने पीर के रोज मुनक्कदा प्रजवानी जिला कलेक्टर को एक तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करते हुए बताया कि सफ़ेद राशन कार्ड की इजराई के लिए मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों पर कई शराइत आयद की जा रही, जिससे गरीब मुस्तहिक दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। मीर बशारत अली ने अपनी नुमाइंदगी में बताया कि सफ़ेद राशन कार्ड की इजराई के लिए हाउस टैक्स RCB बुक को लाजमी करार किया जा रहा है, जो गैर ज़रूरी है। उन्होंने प्रजवानी में जिला कलेक्टर को तहरीरी नुमाइंदगी हवाले करने पर जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने वजाहत की गई। सफ़ेद राशन कार्ड के लिए सिर्फ बरकी बिल और सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट तलब किया जा रहा है, दूसरे किसी दस्तावेजात की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम में सफ़ेद राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल की गई थी, लेकिन नया सॉफ्टवेयर तैयार करते हुए दोबारा दरख्वास्तें हासिल की जाने के बावजूद ये गलत फहमी पैदा की जा रही। सफ़ेद राशन कार्ड के लिए कई किस्म के दस्तावेजात तलब किए जा रहे हैं, जो गलत अफवाह है। मीर बशारत अली मजलिस बचाओ तहरीक निजामाबाद जिला सदर ने कहा कि सफ़ेद राशन कार्ड गरीब खानदानों का हक है, उन्हें गैर जरूरी तौर पर परेशान न किया जाए, बल्कि आसानी के साथ सफ़ेद राशन कार्ड की मंजूरी अमल में लाई जाए। मीर बशारत अली ने गरीब मुस्लिम खानदानों से ख्वाहिश की कि वो कमीशन एजेंट के झांसे का शिकार ना हो, बल्कि रास्त दरख्वास्त दाखिल करते हुए सफ़ेद राशन कार्ड हासिल कर सके। मजलिस बचाओ तहरीक के दफ्तर वाकई बुधन रोड अकबू माशाल्लाह फंक्शन हॉल पर रुजू होते हुए दरख्वास्त देने पर सफ़ेद राशन कार्ड के लिए रहनुमाई की जाएगी। इस मौके पर MBT के कायदीन मोहम्मद शुएब, मोहम्मद अब्दुल बाकी और शेख शफी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। राशन कार्ड का जो मसला चल रहा है, लोगों में एक दहशत फैली हुई है कि नए राशन कार्ड के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर होना, घर का टैक्स होना, करंट का बिल होना और कुछ है कंडीशंस, वो कंडीशंस होना बल्कि लोगों में एक अफवाहें चल रहे थे। तो वो उसको क्लियर करने के लिए आज एक जो मजलिस बचाओ तहरीक एक वफद की शक्ल में आकर आज कलेक्टर साहब से मुलाकात करी और तफसीली गुफ्तगू रही। कलेक्टर साहब का ये कहना है कि उसमें शराइत के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ करंट का बिल और सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी आपको कोई चीज़ नहीं है बल्कि सेल्फ एक डिक्लेरेशन दे दिए और करंट का बिल दे दिए तो काफ़ी है। उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स, घर का टैक्स होंगे और दूसरे कोई चीज़ें होंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लोगों में खौफ का माहौल चल रहा है कि मीसे वाले उन लोगों को ये बोल रहे हैं कि इसमें ये शराइत होना, नए राशन कार्ड के लिए शराइत होना, तो उसकी क्लैरिफिकेशन आज मैं करने के लिए कलेक्टर साहब के पास आया था और कलेक्टर साहब ने खुल के वजाहत की कि हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग जो है गलत बवार कर रहे हैं और कांग्रेस के माइनॉरिटी के लीडर्स कैसे खामोश बैठे हुए मालूम नहीं। क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स को ये मालूम होना चाहिए था कि जबकि ये अफवाहें चल रहे हैं तो पब्लिक में आकर एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमने आज मालूम किया है। और मालूम करने के बाद हमको ये बात बताई गई कि सिर्फ क्योंकि लोग जो है मी सेवा में इससे पहले जो प्रजा पालना में जब सब राशन कार्ड के लिए, नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दिए थे, तो वो लोग एड्रेस चेंज हुआ, तो वो एड्रेस चेंज की खातिर जो लोग प्रजा पालना में दरख्वास्त दिए थे उनका जो है सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी शामिल हो गया है। मगर शामिल होने के बाद फिर नए सिरे से जो है आप जाके मी सेवा में अप्लाई कर रहे हैं, तो मी सेवा में जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है उन लोग एड्रेस प्रूफ के लिए एक राशन कार्ड पूछ रहे हैं, तो वो राशन कार्ड दिए तो काफ़ी है, उसके आगे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर्स
आप लोग होश में आइए, आप गफलत की नींद में सो रहे हो, आप लोग पब्लिक में जाइए और ये बात वजाहत कीजिए कि नए राशन कार्ड के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय राशन कार्ड के। और मैं पब्लिक से, अवाम नास से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगरचे आपको कोई दिक्कत हो रही है या कोई तकलीफ महसूस हो रही है तो आप आइए मजलिस बचाओ तहरीक का दफ्तर जो माशाअल्लाह फंक्शन हॉल के बाजू में है, आप वहाँ पर आइए। हुकूमत पिछले 3 सालों से ज़ेरे तालीम तलबा को वाजिबुल अदा रकम नहीं की, इसलिए तलबा को स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा। हुकूमत फौरी बकाया बिलों की अदायगी करे। पेरेंट्स कमेटी सदर बी नागराजू का बयान। औलियाए तलबा कमेटी ने तलबा की हमरा जिला हेडक्वार्टर में कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया। इस मौके पर पेरेंट्स कमेटी सदर बी नागराजू ने कहा कि पसमानदा SC और ST तलबा हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराएगी बेहतरीन दस्तियाब स्कीम का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई में बेहतर तरक्की करें, लेकिन हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों से इस स्कीम का इस्तेमाल करते हुए तालीम हासिल करने वाले तलबा को वाजिबुल अदा रकम अदा नहीं की। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का इस्तेमाल करते हुए रियासत भर में 26,000 तलबा ज़ेरे तालीम है। उन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि तालीमी साल शुरू हुए 12 दिन होने के बावजूद तलबा को दाखिला नहीं दिया जा रहा, लिहाजा उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर बकाया बिलों की अदायगी और तलबा की किफालत करें। పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమైనాయి। పాఠశాలలు ప్రారంభమైన నుండి ప్రతి సంవత్సరము ప్రైవేటు స్కూల్లో పిల్లలు చదువుతారు కాబట్టి ఆ స్కూల్ యజమాన్యం ఈసారి ఫోన్ చేయలేరు, మేమే కలిగించుకొని స్కూల్ పాఠశాలకు వెళ్తే మీ యొక్క పాఠశాలలకు గత 3 సంవత్సరాల నుండి మీ పిల్లలకు చెల్లించవలసిన డబ్బులు ఇంకా అందలేదు, అందుకని మీ పిల్లల్ని ఇప్పుడే ఆ పాఠశాలకు తీసుకురావద్దని ఒకవైపు స్కూల్ యజమాన్యాలు మూకుమ్మడిగా చెప్తా ఉంటే ఆ బాధను తట్టుకోలేక మేము SC ST కార్పొరేషన్ చుట్టూ గత 12 రోజులుగా తిరిగినాం। అయినా కానీ ఇక్కడ అధికారులు వస్తాయి రిలీజ్ చేస్తాము కరెక్టే అని చెప్పి మాటలు దాటవేస్తున్నారు తప్ప మాకు ఇంతవరకు న్యాయం జరగలేదు। అందులో భాగంగానే మేము ఈరోజు కలెక్టరేట్ గేట్ ముందు ధర్నా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం। ఇది మా నిజామాబాద్ డిస్టిక్లోనే కాదు యావత్తు తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ఈ యొక్క ఆవేదన, తల్లిదండ్రుల ఆవేదన। తెలంగాణ ప్రాంతంలో బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కీమ్ కింద 26,000 మంది విద్యార్థులు చదువుతూ ఉన్నారు। ఇప్పటికీ మాకు రావాల్సిన డబ్బులు 300 కోట్లని స్కూల్ యజమాన్యాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు। ఒకవైపు వారు కూడా వాళ్ళ యూనియన్లు మరి మేము కూడా స్కూల్ నడపలేమని వాళ్ళు కలెక్టర్ని కలుస్తూ ఉన్నారు। మరి ఎవరు मरकजी बीजेपी हुकूमत मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को तेजी से नाफिज कर रही मेहनतकश तबके से 9 जुलाई को मुल्कगीर आम हड़ताल में शामिल होने और उसे कामयाब बनाने की CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने की अपील। शहर में CITU जिला दफ्तर में आशा यूनियन जिले मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मौके पर CITU जिले सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत बरख रफ्तारी से मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को नाफिज कर रही। इसके एक हिस्से के तौर पर उन्होंने कहा कि 29 लेबर कवानीन को मनसूख कर दिया गया और 4 लेबर कोड्स लाए गए। अगर उनको लागू किया जाता तो वो तमाम हुकूक छीन लिए जाएंगे जो हिंदुस्तानी मेहनतकश तबके ने कुर्बानियों से हासिल किए। उन्होंने कहा कि आशा कारकुनों को जिंदा रहने के लिए हुकूमतों की मेहरबानियों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। आज भी मरकजी हुकूमत ने आशा वर्कर्स के लिए मुकर्ररा कम अज कम उजरत का फैसला नहीं किया और इस तनाज़ुर में मरकजी और रियासती ट्रेड यूनियनों ने मरकजी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए 9 जुलाई 2025 को मुल्कगीर आम हड़ताल की कॉल दी। इसलिए उन्होंने रियासत की तमाम आशा वर्कर से अपील की कि वो इस हड़ताल में हिस्सा लें और कामयाब करें। జాతీయ సంపదను తీసుకుపోయి అంబానీ ఆదాని కాళ్ళ దగ్గర పెడతా ఉంది। ఇది సరైంది కాదు। ఏదైతే ఇవాళ ప్రైవేటీకరణకు కార్పొరేట్లకు ఇవాళ యాజ్యం పోస్తూ ఉంది, విద్యాని కానీ వైద్యాన్ని కానీ ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ ఉంది, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలనేదే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఇవాళ ఏదైతే ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఇది సరైంది కాదు। ఏదైతే ఇవాళ ప్రజలకు ఇవాళ ధరలు విపరీతంగా పెరిగినాయి, పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగినాయి, ధరలపై ప్రజలపై భారాలు మోపుతూ ఉంది, పెద్దలకేమో రాయితీలు ఇస్తూ ఉంది, ఇవాళ కోట్ల రూపాయలు దోచుకొని పోయినోడికేమో
కనీసం మాట్లాడట్లేదు, ఇది చేయట్లేదు. ఇవాళ కార్మికులకు ఏదైతే ఈ కోట్లలో తీసుకొచ్చిందో మాట్లాడొద్దంట, అడగొద్దంట, సంఘం పెట్టుకోవద్దంట, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవద్దంట, సమ్మెలు చేయొద్దంట, ధర్నాలు చేయొద్దంట, జీతం ఇచ్చినప్పుడే తీసుకోవాలనేది ఇలాంటి అనేక ఆంక్షలను పెడతా ఉంది. ఈ ఆంక్షలను ఏదైతే ఇవాళ మళ్ళీ వెంటనే 29 చట్టాలను వెంటనే పునరుద్ధరించాలనేదే సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఏదైతే ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా జరగబోయే సమ్మెలో కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని విజయవంతం చేయాలనేదే ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం వెనక్కు అడుగేయకుంటే ప్రజలలో, కార్మికులలో ఇప్పటికే సమ్మె గురించి ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా మోడీ ఏదైతే విధానాలను అవలంబిస్తూ ఉందో ప్రజలందరూ ఈ సమ్మెలో పెద్ద ఎత్తున దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలు, కార్మికులు. कॉरपोरेट और प्राइवेट स्कूलों में तालीम के कमर्शलाइजेशन पर पाबंदी लगाने का पीडीएसयू तेलंगाना स्टेट कमेटी के कायदीन ने स्कूल एजुकेशन कमिश्नर के डायरेक्टर से किया मुतालबा और कहा कि रियासत भर में बगैर इजाज़त कायम किए जा रहे श्री चैतन्य और नारायणा तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीडीएसयू तेलंगाना स्टेट कमेटी की जानिब से शहर हैदराबाद के सैफाबाद में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कमिश्नर के दफ्तर पर रियासत भर में तालीमी शोबे के मसाइल के हल के लिए धरना मुनाक़द किया गया। कमिश्नर नवीन निकोलस को एक अर्जी पेश की गई। इस मौके पर पीडीएसयू तेलंगाना स्टेट कमेटी के कायदीन ने कहा कि सरकारी तालीमी इदारों में मसाइल को हल किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट और प्राइवेट स्कूलों में तालीमी कारोबार बंद किया जाए और फीस रेगुलेशन कानून लाया जाए जैसा कि कांग्रेस हुकूमत ने ऐलान किया है। प्राइवेट कॉर्पोरेट स्कूलों में गरीबों को दाखिला दिया जाए और हक तालीम कानून को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने श्री चैतन्य और नारायणा तालीमी इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया जो रियासत भर में बगैर इजाज़त के कायम हो रहे। इस प्रोग्राम में पीडीएसयू तेलंगाना स्टेट कमेटी के कायदीन ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजवानी का एहतमाम। मंडल सतह पर हल होने वाले मसाइल को अवामी समाज तक पहुंचने से कबल ही हल करने ओहदेदारान को हिदायत। हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी कंटेश्वर दरगाह के जाली दस्तावेजात बनाते हुए रजिस्ट्री की गई। कब्जे को बर्खास्त और रजिस्ट्री मंसूख करने हाफिज लैब खान की दरगाह सज्जादा नशीन के हमरा कलेक्टर से मुलाकात। चहलकदमी, वर्जिश, योगा सेहत के लिए मुफीद। रोजाना चहलकदमी करते हुए बेहतर सेहत बनाए। दरपली सीआई। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।